Hello and welcome to Amit's Tuition Center. Today we are going to check the acidity and basicity of different samples of soil which I have taken from different depths. Here I have four different samples: zone A or sample A, sample B, sample C and sample D. First of all मैं बता दूं कि ये जो सैंपल A है जिसे मैं जोन ए सॉइल बोल रहा हूं, ये मैंने सबसे पहले 6 इंच का एक गड्ढा खोदकर 6 इंच गहरा गड्ढा खोदा, वो सॉइल है दिस सैंपल ए। उसके बाद फर्दर 1 फीट, दिस इज सॉइल बी और सैंपल बी। देन फर्दर 1.5 फीट, दिस इज सॉइल सी और सैंपल सी। एंड देन अनदर 6 इंचेस सॉइल इज सॉइल डी और सैंपल डी। नाउ व्हाट टू डू हियर इज today we will learn that how can we check the acidity and basicity using the reagents at home. So सबसे पहले क्या करेंगे, मैं जितना सा बता दूं आपको कि we will use vinegar and sodium bicarbonate or simply we can say baking soda which is easily available at our homes. होगा क्या, we know that vinegar is acidic in nature. तो जब हम इसे सॉइल में डालेंगे, किसी भी सॉइल में डालेंगे, अगर ये सॉइल बेसिक होगी तो दिस एसिड विल रिएक्ट विद दिस सॉइल which may or may not be basic. अगर होगी तो बबल्स आएंगे, अगर नहीं होगी तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। सिमिलरली ऐसा ही हम करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा के साथ। जिस भी सॉइल में हम एक्वा सॉल्यूशन उसके लेके सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, अगर बबल्स आएंगे तो दैट सॉइल विल बी एसिडिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज दिस बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट, the chemical formula of baking soda is NaHCO3 which is sodium bicarbonate. अगर हम उसे इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो it will react with that अगर soil acidic होगी and it will give out the bubbles. Okay, so let's proceed towards our reaction. So here we have taken sample A. अब इसमें हम, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, now I am going to pour some amount of vinegar to it. And as you can clearly see, there is no bubbles forming in this sample when we have added vinegar to it. Okay, so now our next is same sample A, but so we can say here, what we can deduce it from here is that this soil will not be acidic. as अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल माइनर से बबल्स दिख रहे होंगे आपको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्लाइड से बबल्स आ रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि द सॉइल ऑलमोस्ट बेसिक होगी। Once I am again pouring some amount of vinegar so that हम श्योर हो जाएं कि this soil is not acidic in nature. So now I am going to add this baking soda which is sodium bicarbonate to the same sample soil A. So while adding the sodium bicarbonate to it, I could here see that a very little amount of bubbles are again formed here. So बहुत ही small amount में हमारे पास ये bubbles form हुए. So as we can see, there is no reaction in sample A soil either on putting vinegar or on putting sodium bicarbonate or baking soda in it. So what we can deduce it from here is that this soil is neutral in nature. So now we have sample B, soil B, जो हमने 1 फीट नीचे से ली थी, तो इसमें भी मैं यही कर रहा हूँ। I am again adding some amount of vinegar to it, and जब मैं इसे डिसॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, जब मैं इसे डिसॉल्व करूंगा तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसमें बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस नाउ फर्स्ट चेक इट फॉर इट्स बेसिसिटी आल्सो। उसके बाद मैं आपको इन्फरेंसेस की बताऊंगा व्हाट इज इट्स इन्फरेंस।
सो एज यू कैन सी, जिस कंटेनर में हमने, जिस फ्लास्क में हमने विनेगर डाला था, इट हैज बबल डाउन। ये देखिए आप, यहाँ पे बबल्स बहुत अच्छे बन रहे हैं एंड देयर इज नो रिएक्शन in the glass in which we put sodium bicarbonate or baking soda. So from here we deduce that the zone B layer or the sample B soil is basic in nature. अब हमारे पास soil C है जो हमने 1.5 फीट से नीचे ली थी। इसमें भी मैं विनेगर ऐड कर रहा हूं। And now we will check for the basicity of this soil by adding some amount of baking soda to it. So as you can see here that when we pour baking soda to it and vinegar, we have small amount of bubble, in very small amount of bubbles in by pouring baking soda, very 1 or 2 just. And here when we added vinegar to it, we have some fizziness in the container, जैसे हमें सॉइल बीबी में मिली थी लेकिन उससे थोड़ी सी कम है। तो from here I can deduce that this soil C is basic in nature. This is again basic. So now we have taken soil D, जो हमने सबसे लास्ट पे, लास्ट 6 इंच जो soil ली थी, कि वो soil है। तो उसमें भी मैं वही कर रहा हूँ। I am again adding small amount of vinegar to it, and जब मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ, I will तो यहाँ पे मेरे पास चेक थोड़ी देर के लिए पड़े रहने देता हूँ, लेट इट स्टैंड, और चेक करूंगा क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फिजीनेस आ रही है, बबल्स आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सॉइल बेसिक हो सकती है, लेकिन पहले मैं बेकिंग सोडा के साथ भी इसे चेक करूंगा। सो एज यू कैन सी क्लियरली कि हमारे जैसे जैसे मैं नीचे जाता गया, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे बेकिंग सोडा डालने पर नहीं हो रही है, और जब मैं यहाँ पे विनेगर डाल रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फिजीनेस हो रही है। जैसे ही मैं A से B की तरफ गया, B से C की तरफ, और C से जैसे ही मैं D की तरफ जा रहा हूँ, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, आई कैन से आफ्टर 10 to 15 सेकेंड्स, जो फिजीनेस आ रही है वो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वो बढ़ती है। यू कैन क्लियरली सी, जो सॉइल A थी, सैंपल A था, उसमें कुछ नहीं हुआ था, ना तो विनेगर डालने में कुछ हुआ, ना ही बहुत, यहाँ पे हुआ क्या था, मैंने पहले भी बोला था, बहुत ही माइन्यूट से बबल्स आए थे। तो इट वाज अराउंड न्यूट्रल, हो सकता है इसकी पीएच अराउंड 7.1 और 2 हो, और जैसे ही मैं बी पे गया थोड़े बबल्स ज्यादा बने विनेगर ऐड करने पे, एंड सिमिलरली चारों में मेरे पास बेकिंग सोडा डालने पर कोई रिएक्शन नहीं हुई। सो इट शो, और जैसे मैं विनेगर डाल रहा था, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, जो फिजीनेस की अमाउंट है, जो बबल्स की अमाउंट है, दैट गोज ऑन इंक्रीजेस, एंड विद दिस शोज दैट एज आई एम गोइंग डाउन, जहां से मैंने ये सॉइल ली है, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, इस सॉइल की जो बेसिसिटी है वो बढ़ती जा रही है। एंड दैट्स ऑल। हमने 4 सैंपल चेक किए। अगर बेकिंग सोडा डालने पर भी इसी तरह से फिजीनेस आ जाती या बबल्स बन जाते तो हम बोलते कि हमारी जो सॉइल थी दैट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, सो एज वी हैव सीन कि जो हमारे चारों के चारों सैंपल्स आ रहे थे, जो जोन ए का सैंपल था दैट वाज न्यूट्रल, जोन बी स्लाइटली बेसिक, बहुत ही स्लाइट सी फिजीनेस आई थी उसमें, तो वी कैन से दैट इट्स पीएच मस्ट बी अराउंड 8 और 8.5, और जो न्यूट्रल था उसके बिल्कुल स्लाइट से बिल्कुल 1 या 2 बबल्स ही बने थे, मैं बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल और 7.1 हो सकती है। देन जोन सी और सैंपल सी
थोड़ी सी फ्रीजीनेस जो है वो बी से बड़ी थी, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज स्लाइटली मोर बेसिक देन बी, और हो सकता है इसकी पीएच अराउंड 9 और 10 हो। और इसी तरह जोन डी जो सबसे ज्यादा बेसिक आई थी, आई कैन से दैट सैंपल डी, जोन डी सॉइल इज द मोस्ट बेसिक आउट ऑफ दीज 4 सैंपल्स व्हिच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डेप्थ। सो इसकी हो सकता है पीएच अराउंड 11 और 12 हो। So this was how you can test the basicity and acidity of soil at home using the reagents which are easily available to you. So that's all for today. And अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अमित ट्यूशन सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।